Hello everyone, welcome back. Welcome back to the next session of biology. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. We are talking about animal husbandry, a very important part of agricultural practices. Now in previous session, if you will remind yourself, in previous session we have talked about cattle farming. What are the cattle which we mostly rear? What are the conditions necessary for that? How the cattle farming is done? Which are indigenous breed? Which are exotic breed? And how the most ill is taken by that cattle farming. In today's session, we are talking about another branch of animal husbandry, that is poultry farming. Poultry farming, this word if you will listen, you will be think about a big poultry farms having so many hens, white color या फिर red black color hens are there, cocks are there, right? No, poultry farming is not only related with the hens. Okay, poult, this word, this word poult, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है फाउल. In regular language, a bird. Many birds are there which are rare to get many products. For example, emus are there, pigeons are there. Okay, in our country, emu is also reared on large scale. Clear? But on the top level in the poultry farming, we rear the bird, hen and cock, means the poult. Chickens we are mainly choosing for. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में काफी ज्यादा हाई डिमांड पे है. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल prefers this poultry food as their secondary food after the agricultural food, right? मतलब खेती से हमें जो grains वगैरह वेजिटेबल्स मिलते हैं उसके बाद जो second preference देते हैं हम poultry food को देते हैं, क्योंकि poultry food provides you two main type of food, that is egg and flesh. Okay, egg and flesh, and both are very nutritious. Egg we can consume in different form, in the form of different dishes which is rich in vitamins, proteins. Along with that, the chicken means जो flesh हम खाते हैं इसका broilers का, that is also very nutritious. Understood? That's why poultry farming is become a very popular trend nowadays as the part of animal husbandry. पोल्ट्री फार्मिंग जनरली डील्स विथ रियरिंग द पोल्ट्स, मतलब उन बर्ड्स को रियर करना, उनकी केयर करना, उनको डिजीज फ्री रखना, उनको प्रॉपर फार्म मतलब शेल्टर अवेलेबल करके देना, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो उनका हैचिंग है, हैचिंग उस पर ज्यादा फोकस करना. और ये सब होने के बाद प्रॉपर मार्केट वैल्यू का भी मैनेजमेंट करना. दीज ऑल थिंग्स कंप्राइजेस अ पोल्ट्री फार्मिंग. Poultry farming is basically carried out for two purposes. एक, क्या आप अंडों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, मीन्स जस्ट टू प्रोड्यूस द एग, एंड सेकेंड, आर यू विलिंग टू रन दिस पोल्ट्री फार्मिंग प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस द मीट, फ्लैश, चिकन जो है. एक्चुअली हमें क्या लगता है पता है, जनरली हम सोचते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग, जो भी पोल्ट्री फार्म देखा, बहुत सारी मुर्गियां देखी, मुर्गे देखे, तो हमें ऐसे लगता है ये सारे ही अंडे देते हैं या फिर ये सारे चिकन में कन्वर्ट होते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर टू टाइप्स, मेन टू टाइप्स. दैट टाइप वन इज कॉल्ड एज लेयर, और इसको एगर भी कहते हैं. एगर, टू ले मीन्स इट इज ओनली फॉर एग. एंड ब्रॉयलर, बहुत सी बार मैंने ऐसे सुना ये ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा है, ये ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा है. ब्रॉयलर मुर्गी अंडा देती ही नहीं, क्योंकि ब्रॉयलर जो है वो मेनली रेयर की जाती है ओनली फॉर द फ्लैश पर्पस. हाँ, अंडे वो दे सकती है, लेकिन उस स्टेज तक, उस मेच्योरिटी लेवल तक वी आर नॉट वेटिंग. वी मीन्स एज बीइंग अ practitioner of this poultry farming, we are not waiting till that time. We are immediately selling this broiler chickens to the market for the purpose of flesh. So these broilers or
चिकन्स ओनली फॉर फ्लैश। सो ये दो मेन टाइप हो गए। एक जो होती है वो सिर्फ लेयर, सिर्फ अंडे, इट इज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द एग। दिस टाइप्स ऑफ hens are reared mainly for the production of eggs, not meat, right? We can consume their flesh as well. उनका जो फ्लैश है वो हम खा सकते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी क्या है? टू ले द एग, सो दे आर रेयर फॉर दैट पर्पज। एंड ये जो है दैट कैन ऑल्सो ले द एग, बट देयर एग लेइंग कैपेसिटी इज लेस बिकॉज वी आर रेयरिंग देम फॉर दिस पर्पज, फॉर द flesh. Understand? So on this basis they both are reared in different conditions. क्या conditions होती है? Shade वैसे ही लगता है उनको, लेकिन जो space availability है ना, space availability for this layer is more, मतलब उनको ज्यादा space चाहिए. The availability of the space in the form of this layer should be more because they are living there near about 500 days, 20 to 30 week तक वो वहां पे रहते हैं। And this hardly 6 to 7 weeks के बाद या हफ्तों के बाद, after reaching to the particular growth period, they are sent to the market for this chicken purpose. Understand? Then we are waiting for their maturity period. Maturity period for what? To lay the eggs. Clear? Here in this case we are not waiting for their maturity period. Once they are reaching to the age of 6 or 7 week, we are sending them into the market. So उनकी maturity period का वेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। Clear? Then इनका जो खाना है वो विटामिन ए, विटामिन के, मतलब विटामिन रिच होता है, राइट? इनका जो खाना है वो विटामिन के साथ साथ फैट रिच होता है। फैट रिच क्यों? Because they have to gain the weight. A completely grown 6 to 7 week तक grown की हुई जो चिकन होती है उनका वेट नियर अबाउट 750 ग्राम से लेके 1.5 किलोग्राम तक आता है। That is to be considered as the healthier breed ये वर्ड मैंने आपको बताया था when in the previous session in cattle farming. Breed, a variety, a species of a particular animal is known as breed. So the egg laying capacity of particular breed is vary. The weight of the broiler of a particular variety is also vary. Understood? But these are some basic differences which are differentiate the hens into two main categories, that layers or eggers and broilers or chickens. So इसके बाद याद रखना, these layers are different and broilers are different. Understand? Do not mix them together. Now this is about the basic information about the variety and the types of the hens in the poultry farms. Which are the breeds? हमारे इंडिया में कौन से ब्रिड्स है, या फिर हमारे जो इंडिजिनस ब्रिड्स कौन से हैं, एक्सोटिक ब्रिड्स कौन से है? क्या आपको पता है दुनिया में इंडिया इज द 5th कंट्री विच इज प्रोड्यूसिंग द एग्स ऑन लार्ज स्केल। पहला तो आता है चाइना, हर एक बात में आगे है वो चाइना, देन आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, देन आता है आपका यूएसए, देन आता है आपका जापान, और फिर आता है अपना इंडिया, राइट? सो इन द वर्ल्ड यू कैन इमेजिन, इन द वर्ल्ड वी आर ऑन 5th place on the place for the producing eggs, right? So which are the varieties? Some indigenous variety. Indigenous means Indian origin. जो हमारी इंडिया की देसी जो मुर्गियां है वो कौन सी है? That are असील या फिर गेम hen जिसे बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले फार्मर्स जो होते हैं, या the people those who are going for the poultry farming, they are preferring these indigenous breed. This indigenous breed has 4 subspecies जिनका नाम दिया है पीला, याकूब, नूरी, काजल। अभी ये नाम इनको कैसे दिए हैं ऐसे, ये तो उर्दू लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जो है वो उनके आउटर अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप के बेस पे दिए हुए हैं। पीला मीन्स ये जो हेंस है, दीज आर
golden yellowish in color, golden or yellow, okay, golden yellowish in color. याकूब जो है that is black and red, black and red. You may have seen many hens or cock, right? वो जो उनके कलर होते हैं वो एकदम ब्यूटीफुली दिस आर स्कैटर्ड, मतलब उनके नेक रीजन में अलग होता है, उनका बॉडी में अलग होते हैं, उनके लेग की भी कलर अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत, नॉट एट द बॉटम बट व्हेन इट स्टार्ट्स. देन नूरी, नूरी मीन्स ग्लो, यू नो, नूर जिसे कहते हैं. सो ऑफ कोर्स इट इज व्हाइट इन कलर. एंड काजल मतलब काला, सो ये कौन सी होती है, ब्लैक कलर की. व्हाइट मीन्स कंप्लीट व्हाइट, प्योर व्हाइट मिल्क व्हाइट मत इमेजिन करना, बट मोस्टली इट्स व्हाइट इन कलर, इट्स ब्लैकिश इन कलर. अंडरस्टैंड? ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो बर्ड्स प्योर व्हाइट कलर के होते हैं वो सारे हाइब्रिड होते हैं, और जो बर्ड्स इन दिस सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाउल ओनली, दिस चिकन्स ओनली, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, जो व्हाइट होते हैं वो पूरे एक्सोटिक ब्रीड होते हैं, और जो कलरफुल होते हैं वो पूरे देसी होते हैं. ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता. जनरली हमारे माइंड में ये चीज है कि जो कलरफुल होते हैं वो देसी होते हैं. नो, द टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैज क्रॉस्ड ओवर दिस थिंकिंग, because we are crossing the exotic breed with the desi breed and we are producing the hybrids, right, which are showing the characteristics of both, जो दोनों traits दिखाते हैं. अभी exotic breed कौन से है? See, I want to tell you few things about indigenous breed. हमारे जो indigenous breed है, मतलब हमारे जो देसी breed है, वो काफी strong है और काफी वजनदार भी. मतलब when a cock grows to its full age, it gives you 4 to 5 kilogram of weight, and on the contrary, the hen gives 3 to 4 kilogram of weight. Understand? And they are very very suitable. मतलब उनका जो adaptation है वो काफी ज्यादा है. जो हमारे देश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके लिए वो काफी अडेप्टेबल है. अंडरस्टैंड? प्लस जो भी एक्लिमेटाइजेशन की प्रोसेस है, मीन्स गेटिंग सूट और किसी भी क्लाइमेट में जाने के बाद खुद को अडेप्ट कर लेना, एक्लिमेटाइजेशन की भी एबिलिटी बहुत ज्यादा है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है एज देयर वेट इज मोर, दे नीड मोर फीड, एंड on the contrary, though they're taking more feed, they lay less number of eggs throughout a year. Hardly 60-65 eggs वो देते हैं. Means what? The production what a person want through the indigenous breed is less. That's why most of the time we are preferring the exotic breed. Exotic means which is not of Indian origin. हमारे देसी मुर्गियां नहीं, परदेसी है, exotic है. Which are that? That are white leghorn एंड रोड आइलैंड रेड. ये दो मोस्टली प्रेफर की जाती है, इसके अलावा और भी होती है. अभी ये जो व्हाइट लेगॉन है, इट इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर द लेयर पर्पस, क्योंकि इनका जो एग होता है वो काफी व्हाइट कलर का होता है और ओवल शेप का होता है, थोड़ा सा लॉन्ग इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड नहीं, लॉन्ग इलोंगेटेड. एंड द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस पर ईयर इज मच मोर. सो फॉर द लेयर पर्पस it is preferred by the farmers, poultry farmers. Then next is a Rhode Island Red. It is the breed of the USA, mainly of this Rhode Island. ये dual purpose की breed है. Dual purpose की breed means you can use it for to produce the eggs as well as you can use it to produce the meat. मतलब वो अच्छे से weight भी gain करती है और वो अच्छे से layer का भी काम करती है. So it's depend on us for which purpose we will prefer this, but this is the dual purpose. Now crossbreeds. What is mean by crossbreeds? अभी मैंने बताया कि इंडिजिनस ब्रीड्स को एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ क्रॉस करने के बाद जो हमें ब्रीड्स मिलते हैं, जो स्पेसीज, जो वैरायटी मिलते हैं, दैट इज रेफर एज द क्रॉस ब्रीड्स. आई वांट टू टेल यू व्हाई द क्रॉसिंग ऑफ द ब्रीड्स कैरिड आउट. क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल to rear all exotic breeds in our country. It is expensive as well as
द क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंसिडर करते हुए these animals are not able to survive mostly in case of these broilers, क्योंकि उनका जो mortality rate होता है ना, mortality rate, what is mean by mortality? natality and mortality आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में भी। mortality means डेथ रेट, वो ज्यादा होता है किसका? एक्सोटिक ब्रीड का, इफ वी आर ट्राइंग टू रेयर इट इन आवर कंट्री। So when we are crossing the breeds, we are taking many things into consideration. क्या? Is that breed having adaptability? Is that breed needs less food and contrary it provide more number of production? चाहे वो egg हो, चाहे वो flesh हो, उनका egg shell कैसा है, उनका egg शेल का कलर कैसा है, वो जो एग है उसके अंदर का जो कंटेंट है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही क्रॉस ब्रीड्स की जाती है। मीन्स जो डिजायर्ड ट्रेट है वो अलोंग विथ इंडिजिनस ट्रेट क्रॉस किए जाते हैं ताकि हमें हमारी जो डिजायर्ड क्रॉस ब्रीड है वो मिल जाए। ऐसी कौन सी ब्रीड्स है फिर? दीज आर HH260, IBL 80, B77. Now these are the code names which are given to them by crossing these exotic breeds and Indian breeds. Okay. Now एक चीज मैं आपको बताती हूँ, many time a question is been asked क्या कि अंडा जो है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। When the egg is produced without fertilization, sterile egg जिसे बोलते हैं, sterile egg means what? Where there is no chance of fusion of gamete, मतलब वो fertility उसकी हो ही नहीं सकती, reproduction हो ही नहीं सकता। That type of egg is called as vegetarian egg. Okay, why? Because nowadays the layer जो है ना वो स्टेराइल एग ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि स्टेराइल एग्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो फर्टाइल एग्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइफ ज्यादा होती है इन द सेंस उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी खराब नहीं होते। अंडरस्टूड? अदरवाइज व्हाट हैपन इफ द एग इज फर्टाइल? एग इज फर्टाइल मीन्स विच इज फॉर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट टाइम इसका जो लाइफ स्पैन है वो स्टेराइल के कंपैरिजन में कम होता है। इफ यू आर थिंकिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल, दैट टाइम वी नीड द स्टेराइल एग एंड दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेरियन एग। अंडरस्टूड? सो इफ यू समवन विल आस्क यू एनी क्वेश्चन कि एग जो है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, सो जस्ट टेल देम कि अगर ये स्टेराइल है तो वेजिटेरियन है और फर्टाइल है तो ये नॉन वेजिटेरियन है। बट एनीवेज that doesn't matter what type of nutrient we are getting for these things, either from egg or from flesh, that is important for us. Now how these varieties are improved and what are the precautions we have to take in the poultry farming, that we will see in the next session. Thank you.